Hello dear students, today we are going to study about the beam. Okay, very important and very interesting concept. In this we will see the definition of beam, types of beams, types of loading and types of support. Very interesting topic. First of all, we will see what is mean by beam. Okay, so what is beam? Beam is flexural member in civil engineering structure. Okay, structure may be any type of building or bridges. Okay, so first of all, what is meant by flexural member? What is flexure? Flexure is tendency of bending. Okay, so beam looks like this. आप सबने देखा है बीम को, ठीक है, कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, दो कॉलम के ऊपर, दो या दो से ज़्यादा कॉलम के ऊपर ये सपोर्टेड रहता है. अगर एक कॉलम पे सपोर्टेड रहा तो वो कैंटिलीवर बीम हो जाता है. ठीक है, कुछ ऐसे दिखता है. ठीक है, जब बीम पे कुछ लोड आता है देन दिस बीम विल गेट डिफ्लेक्ट लाइक दिस. ओके, ये जो बेंडिंग प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर. So this is the beam. ठीक है, it is the flexural member in civil engineering structure. Now we'll see the different types of beams. First is simply supported beam. Okay, simply supported beam. So what is meant by simply supported beam? The beam which is supported on two simple supports. Okay, then that is called as the simply supported beam. ठीक है, this is the length of beam and this is support. This end is the A and this is B. So the support reaction will be RA and support reaction will be RB here. Okay, so this is the simply supported beam which is simply supported on two supports. Then second is continuous beam. Continuous beam means what? Beam which is supported on more than two supports, 3 or 4, then that is called as the continuous beam. Overhanging beam. Okay, what is mean by overhanging beam? Beam whose length is extended beyond the support. Okay, now these are the support support A and support B. The length, see, this is the length, this length is extended beyond their support, then that is called as the overhanging beam. The next is cantilever beam. Okay, cantilever beam. So what is meant by cantilever beam? The beam whose one end is fixed and another end is free. Whose one end is fixed and another end is free, then that is called as the cantilever beam. Okay, we'll see the example of cantilever beam. The beam over the window. Okay, cantilever which is provided over the window, that cantilever it's fixed in the wall and its another end is free. Okay, so that is the cantilever beam. Then fixed beam, this is the most common type of beam, fixed beam whose both ends are fixed. ठीक है, जिसके दोनों भी एंड फिक्स रहते हैं उसको कहते हैं फिक्स्ड बीम. Then we'll see type of loading. ठीक है, टाइप ऑफ लोडिंग से पहले हम टाइप ऑफ
सपोर्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। नंबर 1 रोलर सपोर्ट, हिंज और पिन सपोर्ट, एंड दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, रोलर सपोर्ट क्या रहते हैं और सपोर्ट रिएक्शन क्या रहते हैं, उससे पहले हम 3 मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ कौन से डायरेक्शन में मूव होती है, एक तो वो ऊपर नीचे मूव होगी, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, वो वर्टिकल मूवमेंट हो गया, ठीक है। नहीं तो एक वो साइडवे मूव होती है ऐसे, लेफ्ट और राइट, ये एक मूवमेंट हो गया, और एक होता है रोटेशन, ठीक है। ये 3 टाइप के मूवमेंट है। ये 3 टाइप के मूवमेंट मतलब क्या, अगर ये आपको समझ में आता है तो आपको रिएक्शन क्या रहता है वो समझ में आएगा। रिएक्शन यानी नथिंग बट रेस्ट्रिक्शन। रिएक्शन इज नथिंग बट द रेस्ट्रिक्शन टू मूवमेंट, नॉट मूवमेंट, ओके। हाँ, रेस्ट्रिक्शन टू मूवमेंट यानी क्या, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है। नाउ दिस बॉडी इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैंड इज सपोर्टिंग दैट बॉडी, ठीक है। इफ माई हैंड इज नॉट सपोर्टिंग दिस बॉडी, देन बॉडी विल गो डाउनवर्ड, मीन्स बॉडी इज मूविंग, मीन्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। जितने डायरेक्शन में मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शन है उतने डायरेक्शन में आपको रिएक्शन दिखेंगे, ठीक है। अभी ये बॉडी है, दिस बॉडी इज नॉट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स देयर इज रेस्ट्रिक्शंस टू द मूवमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स व्हाट माई हैंड इज सपोर्टिंग दैट बॉडी, ओके। सो द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, ओके। ये क्या कर रहा है रिएक्शन, ये बॉडी है, ये पेन मैंने अभी जैसे पकड़ा, ये बॉडी है, माई हैंड इज सपोर्टिंग दिस बॉडी, मतलब क्या, वो नीचे जाने से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब क्या, उसको बॉडी माई हैंड इज सपोर्टिंग, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये सपोर्ट है, इसको कहते हैं सपोर्ट। ये जो एरो दिख रहा है आपको वो सपोर्ट है, ठीक है, उसको कहेंगे हम सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। तो अभी देखते हैं रोलर सपोर्ट, ठीक है। रोलर सपोर्ट वे बहुत इजी है रोलर सपोर्ट, ठीक है। रोलर सपोर्ट कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये रोलर है, जैसे कि ये रोलर के ऊपर एक बॉडी हमने रख दी है, जस्ट लाइक दिस। नाउ दीज आर 2 रोलर्स, ओके। ये रोलर है 2 और इसके ऊपर हमने ये बॉडी रख दी है, ठीक है। अभी ये जो बॉडी रखी है, ठीक है, कौन सा भी एक सपोर्ट कंसीडर कीजिए, ये ए सपोर्ट है, ये बी सपोर्ट है। अभी हम ए सपोर्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। ए सपोर्ट में बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन से मूव हो सकती है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वो मूव हो रही है, ठीक है। ऐसे रोटेट भी हो सकती है, बस वो कैसे मूव नहीं हो सकती, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकती, तो उसको मतलब क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने से उसको रेस्ट्रिक्शन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने से उसको रेस्ट्रिक्शन है, यानी क्या, एक वहाँ पे रिएक्शन है। तो रोलर सपोर्ट पे कितने रिएक्शन रहते हैं, 1 रिएक्शन, ठीक है। ये एग्जांपल है रोलर सपोर्ट का। फिर आप देखते हैं हिंज सपोर्ट। अभी हिंज सपोर्ट का बेस्ट एग्जांपल है आपका डोर, ठीक है। डोर इज फिक्स्ड इन द फ्रेम विद द हेल्प ऑफ हिंज, ठीक है। हिंज से वो कनेक्टेड रहता है फ्रेम को, डोर जो है। अभी डोर जो है वो सिर्फ रोटेट हो सकता है, वो ऊपर नीचे या साइड से ऐसे नहीं हो सकता, वो सिर्फ रोटेट होता है। मतलब क्या, उसके 2 डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, हिंज सपोर्ट को एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन है, मतलब क्या, 2 रिएक्शन, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे।
ठीक है, हिंज सपोर्ट। अभी पिन सपोर्ट, पिन सपोर्ट यानी क्या, जब दो चीज़ें एक दूसरे को पिन कनेक्शन से कनेक्टेड रहती है। अगर आपको पिन कनेक्शन आपने कभी देखा नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, दो पेज है आप उसको ना पिन से कनेक्ट कर लीजिए, या आपने देखा होगा कि आयरन शीट जो रहती है वो एक दूसरे को नट बोल्ट से कनेक्टेड रहती है, नट बोल्ट यानी पिन कनेक्शन ही रहता है वो, ठीक है। तो वो भी सपोर्ट में जो शीट्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं होती है, ठीक है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकती, लेकिन वो रोटेट हो सकती है, तो दैट इज़ द पिन सपोर्ट। हिंज और पिन सपोर्ट दिखने में अलग अलग है, लेकिन दोनों सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस जो है वो सेम है, इसलिए वहाँ पे हिंज और पिन सपोर्ट में दो रिएक्शन रहेंगे। नाउ फिक्स सपोर्ट, ओके, फिक्स सपोर्ट वेरी सिंपल, वो भी एग्जाम्पल आपने देखा हुआ है। विंडो के ऊपर जो कैंटिलीवर रहता है, दैट कैंटिलीवर इज फिक्स्ड इन द वॉल, है ना, वो ऐसे फिक्स रहता है वॉल में कैंटिलीवर, ठीक है। इसके नीचे जो रहती है वो विंडो रहती है, ठीक है। ये कैंटिलीवर इसलिए सपोर्टेड रहता है, प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग में, ताकि मतलब जो सनलाइट है या रेनी सीजन में जो वाटर है वो बिल्डिंग के अंदर ना जाए, इसलिए प्रोविजन जो किया है उसको कहते हैं कैंटिलीवर, ठीक है। अभी फिक्स सपोर्ट यानी कि ये इसमें फिक्स है, ठीक है, मतलब क्या, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता, ये ना ऊपर नीचे जा सकता है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, ये ना साइड से ऐसे ऐसे हो सकता है लेफ्ट राइट, इसलिए वो डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन रहेगा, और ना तो ये रोटेट हो सकता है, ठीक है, इसलिए वो भी डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो तीन डायरेक्शन में इसको रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए देयरफॉर देयर विल बी 3 रिएक्शंस, ठीक है। 1 रिएक्शन क्यों रहती है, 2 रिएक्शन क्यों रहते हैं, 3 रिएक्शंस क्यों रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप समझते हो ये कंसेप्ट को तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ के लेना अच्छे से, ठीक है। रोलर पे 1 रिएक्शन, हिंज पे 2 रिएक्शन, फिक्स पे 3 रिएक्शन। ये भी अगर ध्यान में नहीं रहता तो देखिए बहुत अच्छे से, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आता है F आता है, फिर H आता है, फिर R आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा 3 रिएक्शन, 2 रिएक्शन एंड 1 रिएक्शन, ऐसे उसको आप, एक ट्रिक है याद रखने की, तो इससे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग। Type of loading is also very important and interesting. Point load and concentrated load. Number 2, uniformly distributed load, उसको हम UDL भी कहेंगे। और 3, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। ओके, सो व्हाट इज पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है। जैसे कि ये दिस इज द लेंथ ऑफ बीम, ठीक है, ये बीम है, ठीक है, उसकी ये लेंथ दी हुई है, तो ये लेंथ पे पॉइंट लोड जो है वो कहीं से भी, मतलब कहीं पे भी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बीच में कहीं पे भी वो एक पॉइंट पे एक्ट होता होगा, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो उसको कहेंगे पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड कैसे भी रहता है, लेकिन बस उसका ये है कि वो एक ही पॉइंट पे एक्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो उसकी जो इंटेंसिटी रहती है सपोज W, अब उसका यूनिट रहेगा न्यूटन और किलो न्यूटन में, न्यूटन और किलो न्यूटन में रहेगा। ठीक है, फिर आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो आप जब आप बुक में देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, and this is also uniformly distributed load.
इसकी जो इंटेंसिटी रहती है वो किलो न्यूटन और न्यूटन पर मीटर में रहती है, न्यूटन और किलो न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, कुछ ऐसे दिखता है। सपोज इसकी लेंथ हम अभी जो यूडीएल है, तो व्हाट इज यूडीएल? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी क्या? द लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द लेंथ ऑफ बीम। लेंथ के बीम के लेंथ के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जहाँ पे भी इस लोडिंग का सीजी होगा वहाँ पे वो उस पॉइंट पे पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड हम उसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अभी इसका लेंथ है L और ये जो इंटेंसिटी है ये है W। ठीक है, तो ये जो रहेगा वो रेक्टेंगल रहेगा। ठीक है, अगर सपोज 1 किलो न्यूटन 1 मीटर पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर। अब पूरा कितना है? 10 मीटर। तो 10 मीटर पे कितना एक्ट होगा? 1 × 10 इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। तो ये जो 10 किलो न्यूटन है वो कहाँ पे एक्ट होगा? उसके सीजी पे, मतलब क्या? ए और बी के बीच में, मतलब ए से 5 मीटर डिस्टेंस पे एक्ट होगा। नाउ अभी इसका एक एग्जांपल लेंगे हम। ये सपोज है 60 किलो न्यूटन पर मीटर और ये जो लेंथ है ये है 10 मीटर। ठीक है, तो इसकी टोटल इंटेंसिटी क्या होगी? 1 मीटर पे 60 किलो न्यूटन है, तो 10 मीटर पे कितना? 60 × 10 कितना हो गया वो? 600 किलो न्यूटन। तो वो कहाँ पे एक्ट होगा? ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से 5 मीटर डिस्टेंस पे, ए पॉइंट से 5 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये रिमेनिंग 5 मीटर। सो ऐसे आपको करना पड़ेगा यूडीएल का कन्वर्जन पॉइंट लोड में। ठीक है, यूडीएल का कन्वर्जन पॉइंट लोड में कुछ नहीं, जो इंटेंसिटी दी हुई उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देने का और सीधा सेंटर पे लाके रख देने का। ठीक है, तो वो हो गया कन्वर्जन। अभी हम देखते हैं यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड यानी क्या? लोड विच इज वैरिंग यूनिफॉर्मली या लीनियरली। लीनियरली वैरी होता है लोड। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे ज़्यादा 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 करके ऐसे वो यूनिफॉर्मली वैरी हो रहा है। ठीक है, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। अभी सपोज इसकी इंटेंसिटी 90 किलो न्यूटन पर मीटर है और ये जो है ये 9 मीटर है लेंथ। ठीक है, अब ये ट्रायंगुलर लोड, इसको ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर लोड है। अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना रहा तो कैसे करेंगे? एक मीटर पे 90 किलो न्यूटन है लेकिन यूनिफॉर्मली वैरी हो रहा है वो, तो 9 मीटर पे कितना रहेगा? ट्रायंगुलर लोड है। ठीक है, एरिया लेने का। अभी जो रेक्टेंगुलर लोड था यूडीएल, हमने उसमें क्या किया था? ये इंटेंसिटी और ये लेंथ, ठीक है, ऐसे था कुछ। ये इंटेंसिटी थी, ये मल्टीप्लाई बाय ये एरिया ले लिया था। अभी यहाँ पे भी हम इसका एरिया लेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया क्या रहता है? हाफ, बेस रहेगा 9, हाइट इज़ 90। ठीक है, एक मिनट, हम इसको 9 करेंगे। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मीटर। हाँ, तो ये आ गया, कितना आता है ये? 45 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी 45 किलो न्यूटन टोटल इंटेंसिटी हो गई इसकी। हाँ, तो 45 किलो न्यूटन कहाँ पे एक्ट होगा? ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है। ट्रायंगल का सीजी मैंने आपको सेकेंड यूनिट में सेंट्रॉइड में बताया था कि ये जो है ये वर्टेक्स है और ये जो है ये बेस है, या ज़ीरो, इसको हम ज़ीरो इंटेंसिटी कहेंगे, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, या ये मिनिमम इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ये मिनिमम यानी ज़ीरो ही है। सो ज़ीरो से 2/3 पे एक्ट होगा। 2/3 10, 2/3 ऑफ दिस लेंथ
फ्रॉम ए पॉइंट, तो ये कितना आएगा 10 का 2/3 कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 3 6.67 आएगा, ठीक है 6.67 मीटर। तो 6.67 मीटर थोड़ा सा 5 के आगे चल के यहाँ पे सपोज यहाँ पे वो एक्ट होता होगा और ये रहेगा 3.33, तो ये इंटेंसिटी आती है 45 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, तो ये जो है 2/3 ऑफ 10 वो ए से आएगा और 1/3 ऑफ 10 फ्रॉम बी, ठीक है। 2/3 फ्रॉम ए, 1/3 फ्रॉम बी, तो 1/3 ऑफ 10 क्या आता है 3.33, ठीक है। यहाँ से बी से 3.33 मीटर डिस्टेंस पे 45 किलोन्यूटन एक्ट होगा और ए से 6.67 मीटर पे एक्ट होगा। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड, ठीक है। तो ये सब थ्योरी रही बीम की। अभी हम बीम का एक एग्जांपल लेंगे। Okay, here is the beam. ABCD is given, in which B support, at B there is hinge support and at D there is roller support। और यहाँ पे A पे 20 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड दिया है, C पे 40 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड दिया है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम उसकी FBD ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये ABCD बीम है। अब उसकी FBD हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। हाँ, ए पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड रहेगा जो दिया हुआ है ऑलरेडी 20 किलोन्यूटन। बी पे हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे कितने रिएक्शन रहेंगे 2 रिएक्शन मैंने कहा था, ठीक है। 2 रिएक्शन रहेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो डायरेक्शन है, अभी देखो ये वर्टिकल दिखा रहे हैं हम, इसको हम BY बोलेंगे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो रहेगा वो पता नहीं कौन से डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में या राइटवर्ड डायरेक्शन में, आप कौन से भी डायरेक्शन में दिखाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सपोज ये राइट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, BX का डायरेक्शन राइट दिखा रहा है, अगर BX का आंसर प्लस आता है तो आपने जो डायरेक्शन दिखाया वो राइट है, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। फिर ये 40 किलोन्यूटन और यहाँ पे D पे रोलर है, तो रोलर पे कितने रिएक्शन आएंगे, एक रिएक्शन DY, ठीक है। This is 2.5 meter, this is 3 meter and this is 2 meter। ओके, अभी यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने हैं। तो कौन से 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन कल हमने बताया था, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन से पॉइंट पे हम मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो मोमेंट हमेशा उस पॉइंट पे लेना जहाँ पे ज़्यादा अननोन हो, ठीक है। अभी B पॉइंट एक है, D पॉइंट है, तो B पॉइंट पे ज़्यादा अननोन है, D पे एक अननोन है DY, यहाँ पे BX BY 2 अननोन है। वैसे BX 0 आएगा क्योंकि देयर इज नो अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ BX विल बिकम 0। तो BY एक ही अननोन रहेगा और DY भी एक ही। B पे लीजिए या D पे लीजिए, कहीं पे भी लेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। हम यहाँ पे B पे मोमेंट लेते हैं, ठीक है। तो B पे मोमेंट लेंगे तो BX और BY का मोमेंट B पे 0 हो जाएगा क्योंकि वो दोनों भी फोर्सेस उस पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। नाउ विल टेक द मोमेंट ऑफ 20 किलोन्यूटन, 20 इंटू, अभी फोर्स जो है वो वर्टिकल है तो डिस्टेंस क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा 2.5 मीटर,
ठीक है, ये कैसे जा रहा है बी की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ 40 किलो न्यूटन, 40 इंटू 3, ये डिस्टेंस देखिए, बी पे मोमेंट ले रहे, जिस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं वहाँ पे आपको रखना है फिंगर, ठीक है, जिस फोर्स का मोमेंट ले रहे हैं वहाँ पे आपको रखना है पेन। पेन और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, पेन वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो 3 मीटर डिस्टेंस रहेगा, फोर्स इज 40 किलो न्यूटन, तो वो कैसे जा रहा है बी की तरफ, क्लॉकवाइज। नाउ डी वाई इंटू, अभी डी वाई यहाँ पे फिंगर को हटाना नहीं है, बी पॉइंट पे मोमेंट ले रहे तो फिंगर वहीं पे रहेगा बी पे, डी वाई और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 + 2 5। कैसे जा रहा है वो बी की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू 0। इससे हमको डी वाई की वैल्यू मिलेंगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। डी वाई की वैल्यू आती है 14, डी वाई की वैल्यू आती है 14 किलो न्यूटन, ठीक है। तो डी वाई का जो आंसर आ रहा है आपका प्लस आएगा वो आंसर, ठीक है, प्लस यानी क्या, जो डायरेक्शन आपने ली है वो सही है, मतलब क्या अपवर्ड डायरेक्शन ली है, तो ये रहेगा उसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। अभी सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे आएगा बी वाई प्लस डी वाई, है ना, ये दोनों माइनस माइनस है, -20 -40 इज इक्वल टू 0, बी वाई प्लस डी वाई -60 इज इक्वल टू 0, सो बी वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू 60। अभी डी वाई की वैल्यू 14 यहाँ पे रख देते हैं, बी वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 60, सो इस पे से बी वाई की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस 14, ये आएगा 46 किलो न्यूटन। अभी इसका भी आंसर प्लस आ रहा है, मतलब क्या, हमने जो डायरेक्शन लिया है वो सही है, ठीक है। और लास्ट में समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है बी एक्स, सो बी एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन, बस हो गया, इतना ही है। हमको सिर्फ इतना पूछते हैं बीम के क्वेश्चन में, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट बी एंड डी। यहाँ पे ही सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन लिए हमने, यहाँ पे रोलर है तो 1 रिएक्शन लिया है, 3 इक्विलिब्रियम एफबीडी ड्रॉ करनी है, ठीक है। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने हैं। सबसे पहले मोमेंट की कंडीशन हमेशा अप्लाई करेंगे, पहले मोमेंट आएगा, फिर एफ आएगा, फिर एफ एक्स आएगा, आपको जल्दी जल्दी आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही प्रॉब्लम, कल हम देखेंगे यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छे से स्टडी करना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा है, इसके मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाते, 6 या 7 मार्क्स के लिए तो ये क्वेश्चन पूछते ही है।